بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے دیا جلائے رکھنا ناول کا 8واں حصہ لے کر آئی ہوں۔ لیکن یہ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ کوئی 2 گھنٹے کے بعد قمر واپس آیا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، آنکھوں سے عجیب سی وحشت جھانک رہی تھی۔ عاطف نے اس کا زرد اور ستا ہوا چہرہ دیکھا تو اس میں کچھ بھی پوچھنے کا حوصلہ ہی نہ ہوا۔ وہ پوچھ کر کرتا بھی کیا؟ قمر کا چہرہ چیخ چیخ کر اپنی ناکامی کی کہانی سنا رہا تھا۔ اسے اپنے سینے میں بجھی ہوئی چھری اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اپنا سینہ دبا کر کرسی پر ڈھیر سا ہو گیا۔ کیا خبر لائے قمر بیٹا؟ زیب النساء نے دھڑکتے ہوئے دل اور کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں ارشد کو ساتھ لے کر گیا، سب سے پہلے شادی ہال پہنچا تھا، قمر نے جواب دیا۔ اس شادی ہال کے مینیجر نے بتایا کہ رخصتی کے فوراً بعد ہی عارف خان نے ہال کا کرایہ اور دوسرے اخراجات کا بل ادا کیا۔ پھر 4-5 لڑکیاں جو ساتھ تھیں وہ ایک ویگن میں بیٹھ کر چلی گئیں۔ ان میں ایک نوجوان اور بے حد حسین لڑکی بھی تھی جو دلہن کی طرح بنی سوری ہوئی تھی، اور وہ رخصتی سے قبل چھت پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ موجود تھی۔ وہ برقع پہن کر گئی تھی۔ پھر میں وہاں سے سیدھے عارف خان کے گھر پہنچا تو وہاں تالا پڑا ہوا تھا۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ آج صبح ہی مکان خالی کر کے کہیں اور چلے گئے ہیں۔ وہ لوگ کہاں گئے اس محلے میں کسی کو کچھ خبر نہیں۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ باپ بیٹی پہلے ہی بڑے پراسرار اور عجیب و غریب نظر آ رہے تھے، لیکن کسی سے میل جول بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ کچھ پتا چلا کہ وہ کس محلے میں منتقل ہوئے ہیں؟ میں اور ارشد نے آس پاس کے گھروں میں جا کر دریافت کیا تھا، شاید کسی گھر والے کو خبر ہو، مگر ہر کوئی لا علم تھا۔ زیب النساء نے اپنے سینے پر 2 ہتھڑ مارے اور اپنا سر پیٹتی ہوئی بولی، ہم لٹ گئے بیٹا، وہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر گئے، لاکھوں روپے ہضم کر گئے۔ ایسا بھی اندھیر نہیں ہے امی، سیدہ نے انہیں تسلی دی۔ انہیں لاکھوں روپے تو کیا 10 روپے بھی ہضم نہیں ہوں گے۔ انہیں اب کہاں تلاش کیا جائے گا؟ ان کا ملنا بہت مشکل ہوگا۔ نجمہ مردہ لہجے میں بولی، اس شاطر اور دغاباز لوگوں نے پہلے ہی ایک منصوبہ بنا کر بھائی جان کو بیوقوف بنایا اور یہ اپنی سادگی سے مار کھا گئے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ ان کے اس سارے منصوبے میں اریبہ بھی پوری طرح شریک ہوگی، جب ہی تو ان کا منصوبہ کامیاب ہوا ہے۔ سیدہ نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ بھائی جان، نجمہ کچھ سوچ کر اچھل پڑی، کیوں نہ آپ اریبہ کو جا کر پکڑیں؟ وہ جانتی ہوگی ان دونوں کا نیا ٹھکانہ۔ کاش اس کمینی اریبہ کو یہاں سے جانے ہی نہ دیا ہوتا۔ زیب النساء کف افسوس ملتی ہوئی بولی، سارے فساد کی جڑ تو تھی، وہ ہوتی تو اسے جوتیاں مار مار کے ثنا اور اس کے باپ کے بارے میں پتہ معلوم کر لیتے۔ انہوں نے توقف کر کے پوچھا، کیا تمہیں اریبہ کے گھر کا پتہ معلوم ہے؟ نہیں، عاطف نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کیا معلوم وہ کہاں رہتی ہے؟ پہلے وہ جس گھر میں رہتی تھی اس نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ جو کرنا ہے وہ جلدی سے کرو بیٹا، نہیں تو وہ دونوں اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کو نہ چلے جائیں۔ سب سے پہلے پولیس اسٹیشن جا کر رپورٹ درج کرواؤ۔ زیب النساء نے بیٹے کو مشورہ دیا، تھانے جا کر رپورٹ درج کروانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا، الٹا ہم لوگوں کی بدنامی بھی ہوگی اور جگ ہسائی بھی۔ میرے خیال میں ہماری بہتری اسی میں ہے کہ خاموشی سے ان دونوں کو تلاش کیا جائے۔ جب وہ مل جائیں تو پولیس کی دھمکیاں دے کر راہ راست پر لایا جائے۔
قمر نے مشورہ دیا، جو تم لوگوں کی سمجھ میں آئے وہ کرو۔ زیب النساء نڈھال سی ہو کر لیٹ گئی۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ آپ فکر نہ کریں امی جان، عاطف نفرت و حقارت سے بولا۔ میں ابھی جا کر اس خبیث بوڑھے کو پکڑ کر لاتا ہوں۔ ضلالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اس نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ عاطف نے قمر سے اسکوٹر کی چابی منگوائی۔ قمر نے چابی لا کر دی تو وہ بپھرے ہوئے طوفان کے مانند گھر سے نکلنے لگا۔ ماں اور بہنیں اس کا چہرہ دیکھ کر سہم سی گئیں۔ ان کے سینے دہل کر رہ گئے۔ اس سے پہلے کبھی انہوں نے عاطف کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ یکا یک اس کا چہرہ خوفناک ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں جنونی قاتل جیسی درندگی چھا رہی تھی۔ وہ کسی خون آشام بھیڑیے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ زیب النساء سمجھ گئی تھی کہ عاطف اپنی ذلت و رسوائی، فریب اور سنگین مذاق کا بدلہ لینے جا رہا ہے۔ ان کے دل میں نامعلوم خوف سا جاگزیں ہو گیا۔ یہ سوچ کر ان کے جسم پر جھرجھری سی آ گئی کہ کہیں وہ نفرت اور غصے کے اندھے جنون میں میاں کو قتل ہی نہ کر دے۔ یہ ایسا عالم تھا کہ اس میں انسان کو کسی چیز کی تمیز اور ہوش نہیں رہتا تھا۔ ایک جانب تو اس کی بدترین سبکی اور بے عزتی پر ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور رہ رہ کر ان کے دل و دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ بڑے میاں مل جائیں تو ان کے سینے میں کوئی تیز دھار آلہ چاقو کھونپ دے، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ لیکن دوسری جانب وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کے ہاتھ اس شیطان صرف شخص کے خون میں رنگ جائیں۔ اس خون خرابے کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلے گا۔ یہ سب سوچ کر یک لخت اپنی جگہ سے اٹھی اور بجلی کا کوندا بن کر عاطف کی طرف لپکیں اور اس کی راہ میں دیوار بن کر کھڑی ہو گئیں۔ پھر انہوں نے عاطف کو دونوں بازوؤں سمیت مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر بلک پڑی، عاطف بیٹے، خدا کے لیے تم نہیں جاؤ۔ میں نہیں جاؤں۔ وہ کس لیے؟ اس نے ماں کے آنسوؤں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ کیا میں گھر میں چوڑیاں پہن کر بیٹھ جاؤں؟ شاید وہ لوگ آتے ہی ہوں گے، تمہاری دلہن بھی آ رہی ہوگی، ہو سکتا ہے انہیں کسی وجہ سے دیر ہو گئی ہو۔ انہیں اپنی آواز کھوکھلی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ مجھے بھی جھوٹی تسلی دے رہی ہیں۔ آپ اچھی طرح سے یہ بات جانتی ہیں کہ انہوں نے ہمیں زبردست دھوکہ دیا ہے اور اب کبھی نہیں آئیں گے۔ عاطف نے توقف کر کے گہرا سانس لیا۔ میں اس خبیث بوڑھے کو قتل کر کے ہی سانس لوں گا۔ پاگل پن کی باتیں مت کرو، چلو گھر میں بیٹھو، وہ سسکیاں لیتی ہوئی بولی۔ کل صبح دیکھ لیں گے، اب تم آرام کرو۔ آرام؟ امی جان، وہ غصے سے کھول اٹھا۔ کیا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ہم آرام سے بیٹھ جائیں؟ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ لیکن بیٹے، آخر اس پاگل پن سے کیا ہوگا؟ بات اور خراب ہو جائے گی۔ زیب النساء نے اسے سمجھایا۔ میں کبھی اس بوڑھے کو نہیں بخشوں گا۔ نہیں بھائی جان، نہیں، خدا کے لیے آپ نہیں جائیں۔ پھر اس نے اپنے آپ کو دونوں بہنوں کے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کر کے بڑی بے دردی سے انہیں ایک طرف دھکا دیا اور دروازے کی طرف لپکا۔ وہ دونوں بہنیں اور ماں اسے پکارتی دوڑتی گرتی پڑتی ہوئیں باہر تک آئیں۔ عاطف کے دو تین دوست جو اس ناقابل یقین واقعہ کی بھنک پا کر اور گھر کے اندر ہنگامہ اور افراتفری سی دیکھ کر رک گئے تھے، وہ مکان کے باہر کرسیاں ڈالے بیٹھے ہوئے تھے، قیاس سرائیاں کر رہے تھے۔ پھر وہ عاطف کو تیر کی طرح باہر آتا ہوا دیکھ کر اپنی کرسیوں سے نکلے تو نجمہ اور سعیدہ نے ان کے قریب جا کر لرزہ آواز میں عاطف کو روکنے کی درخواست کی۔ عاطف تو انتقام کے اندھے جنون میں مبتلا تھا۔ اس پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ بڑے میاں کو قتل کرنا ہے۔ ان کے گھر میں یہ کیسی خوشی آئی جس نے ان کی جھولی میں دنیا کا سارا غم ڈال دیا۔ عاطف اپنا اسکوٹر لے کر محلے میں نکل پڑا اور بڑی سڑک پر آ گیا جو کسی قدر سنسان اور
वैरान दिखाई दे रही थी। गहरा सन्नाटा तारी था। वो पूरी रफ्तार से स्कूटर चलाने लगा। इसका जहन इस कदर माऊफ हो गया था कि इसकी समझ में खुद नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है। 1 मील दूर जाने के बाद इसने एक चौराहे पर अपना स्कूटर रोक दिया। चौराहे के पास रुक कर सोचने लगा कि अब इसे यहाँ से कहाँ जाना है। बाप बेटी को इतने बड़े शहर में कहाँ और किस कोने में तलाश करे। रात तेजी से गुजरती जा रही है। मालूम नहीं वो किस मकान में रूपोश होंगे। दफातन इसे अरीबा का ख्याल आया। इसके जहन के तारीक गोशों में अरीबा के नए मकान का महल्ले वकू धुंधला धुंधला सा था। इसे इन दिनों जब अरीबा इसके साथ फ्लैट में रहती थी, इसने बताया था कि वो अपने बहनोई और बहन के घर में साथ रह रही है। इसका बहनोई मस्कत में मुलाजमत कर रहा है। अरीबा से सना का अता पता मिल सकता था, मगर इसके लिए मसला ये था कि वो किस मुंह से अरीबा के घर जाए, जबकि वो अरीबा को धुतकार कर और जलील करके निकाल चुका था। फिर इसके दिल के कोने से एक आवाज उभरी, अरीबा ये कब चाहेगी कि इसे सना मिल जाए। वो खूब जानती और समझती होगी कि इसका सना को पाने का मतलब इसे हमेशा के लिए खो देना होगा। वो कैसे ये चाहेगी कि खुद जिंदा दरगोर हो जाए और अपनी हसरतों की बर्बादी का तमाशा देखे। वो कितनी ही देर तक ऐसी कोई तदबीर सोचता रहा कि जिससे अरीबा को शीशे में उतार सके। फिर वो अरीबा के इलाके में पहुंचा तो इसे अरीबा का मकान ढूंढने में बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। 2-3 बरसों में इस इलाके में बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो चुकी थीं। बड़ी मुश्किल से इसने आखिर अरीबा का मकान तलाश कर लिया, जो अब 2 मंजिला मकान की सूरत में खड़ा था। इस मकान पर अरीबा के बहनोई के नाम की तख्ती लगी हुई थी। इस नाम की वजह से ही वो वहां पहुंच सका था। आतिफ मकान के सामने स्कूटर रोककर सोच में पड़ गया। दरवाजे पर दस्तक देने और इत्तलाई घंटी का बटन दबाने का इसमें हौसला नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि किस तरह अरीबा से बात करे। वो चंद लम्हों तक इसी कश्मकश और ख्यालों में गुम था। फिर इसने सोचा कि आखिर कब तक इस तरह खड़ा सोचता रहेगा। इसे अपनी गर्ज के लिए झुकना ही पड़ेगा। आतिफ ने यह सोचकर बड़ी आहिस्तगी से इत्तलाई घंटी का बटन दबाया। इसने 2-3 बार चंद लम्हों के वक्फे से बटन दबाया था। इसे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा था। इसे अंदर कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो पास आकर दम तोड़ गई। फिर एक निस्वानी आवाज ने, जो नींद में डूबी हुई थी, पूछा, कौन है भाई? इसके साथ ही खिड़की का पट खुल गया। खिड़की में से कमरे की रोशनी झांक रही थी और सुल्ताना का चेहरा नजर आ रहा था। मैं आतिफ हूँ। आतिफ की आवाज में इरताश था। आतिफ? सुल्ताना ने चौंक कर इसे देखा। सुल्ताना को अपनी नजरों पर जैसे यकीन नहीं आया। इसकी नींद से बोझल आंखों से यकदम नींद काफूर हो गई। कौन आतिफ? सुल्ताना को इस लम्हा ऐसा लगा कि वो कोई ख्वाब देख रही हो। आतिफ अहमद। बाजी, मैं आतिफ हूँ। इसने खजालत से नर्म लहजे में जवाब दिया। ओह, तुम? सुल्ताना के लहजे में बला की हैरत थी। दूसरे लम्हे सुल्ताना के लहजे में हैरत की जगह तंज ने ले ली। यहाँ अरीबा रहती है और ना सना। बाजी प्लीज, वो तासुब से बोला। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आप जलील तो ना करें। हम तुम्हें जलील और शर्मिंदा कैसे कर सकते हैं आतिफ, जबकि हम लोग तो खुद ही जलील हैं। गंदी नाली के कीड़े हैं, सुल्ताना ने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा। आपको हक है कि आप मुझे जितना चाहे जलील व ख्वार कर लें, मुझे जूते लगाएं।
मेरे मुंह पर थूक दें, मोहल्ले वालों को जगा कर मुझे इनसे रुस्वा करके निकाल दें, इसलिए कि मैंने अरीबा के साथ जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। मुझे इसकी इबरतनाक और भयानक सज़ा मिलनी चाहिए। तो क्या इस घर के दरवाजे मेरे लिए अब कभी नहीं खुलेंगे? मैं बेशक जितनी मर्जी माफ़ी मांगता रहूं, मैं वापस चला जाऊं? आतिफ ने दिल गिरफ्ता अंदाज से पूछा। इस घर के दरवाजे हमेशा तुम पर खुले रहेंगे। हम तुम्हारी तरह नहीं हैं जो घर आए मेहमानों को जलीलो ख्वार करके निकाल दें। इस घर में अरीबा रहती है जो सोते जागते में तुम्हारा ही ख्वाब देखती रहती है। सुल्ताना ने जवाब दिया और खिड़की के पास से हट गई। जिस वक्त सुल्ताना दरवाज़ा खोल रही थी, तब आतिफ दिल में खुश हो रहा था कि इसकी तदबीर कारगर साबित हुई, क्योंकि जो कुछ भी उसने कहा था उसका हकीकत से कोई ताल्लुक न था, वो सिर्फ ड्रामा था। सुल्ताना ने इससे बात करना तक गवारा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि सुल्ताना बाजी इससे बात करना गवारा नहीं करेगी। अरीबा से बात करना तो दरकिनार, इसकी शक्ल तक देखना नसीब ना होगा। बहरहाल पहला मरहला बखैर व खूबी अंजाम पा गया। इस कमरे के एक कोने में पलंग था। इस पर साफ सुथरा बिस्तर बिछा हुआ था और एक सोफा सेट और तपाई भी रखी हुई थी। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, सोफे पर बैठ गया तो सुल्ताना बोली, तुम बैठो, मैं अरीबा को जगा कर भेजती हूँ। अरीबा के कमरे की तरफ जाते हुए सुल्ताना पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी। वो खुद वो ये खुद समझने से कासिर थी कि ये खुशी की कैफियत है या हैरत की। वो सोच रही थी कि आखिर आतिफ ने अरीबा से मोहब्बत की शादी करके दिल भर जाने के बाद इसे दूध की मक्खी की तरह अपनी जिंदगी से निकाल क्यों दिया था। फिर वो अरीबा की सूरत तक देखने का रवादार नहीं रहा था। हालांकि अरीबा हसीन थी, शादी के बाद तो वो और भी निखर गई थी, बड़ी पुरकशिश हो गई थी, जिस्म गुदास गुजास तौबा शिकन हो गया था। फिर भी आतिफ के रवैये में कोई फर्क नहीं आया था। इसका सलूक अरीबा से बेरहमाना और रूखा सा था। वो झिड़कियां देकर अरीबा को फ्लैट से निकाल देता था। कभी कभी इसके दिल में एक नामालूम वसवसा उठ खड़ा होता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अरीबा किसी और मर्द की जानिब राग़िब हो गई हो, जिसकी खबर आतिफ को हो गई हो। इसलिए आतिफ ने अरीबा को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया। मुख्तलिफ तरह के शक व शुबात इनके दिल में उठ रहे थे। वो चलती हुई अरीबा के कमरे में गई। सुल्ताना बाजी बिस्तर पर बैठकर अरीबा पर झुक गई। इसकी पेशानी और चेहरे पर बिखरे बालों को हटाया। वो चंद लम्हों तक इसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरती रही, सोचती रही कि अरीबा इतनी बड़ी खुशखबरी का यकीन करेगी या नहीं। क्या इसे इस बात का यकीन आ जाएगा कि आज के वाक़ये ने आतिफ की आंखें खोल दी हैं और आज इसने मोहब्बत की दहलीज पर घुटने टेक दिए हैं। वो आतिफ की आमद की खबर सुनकर खुशी से पागल हो जाएगी। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। अरीबा, सुल्ताना बाजी ने बड़ी आस्तगी से इसका शाना दबाते हुए पुकारा। अरीबा, उठो, उठो तो। किसी शाह की लचकदार बदन बिस्तर पर कसमसाया। सुल्ताना को लगा कि बिजलियां कूद गई हों। इसने दिल में सोचा, आतिफ भी कितना बदनसीब और अहमक है। वो अरीबा जैसे हसीन और बिखरे हुए हुस्न से महरूम रहा। इसे ठुकरा कर शराब पीछे भागता रहा। जब अरीबा नहीं जागी तो सुल्ताना ने इसका शाना हिलाया, इसके भरे भरे गालों को थपथपाया। अरीबा, अरीबा उठो भी। अरीबा ने चंद लम्हों बाद आंखें खोल दी। इसका चेहरा आपा और इसने आपा का चेहरा और आंखें खुशी से मामूर देखी तो मुस्कुराई और बोली, क्या बात है आपा, क्या सवेरा हो गया है? आप सवेरे सवेरे बहुत खुश नजर आ रही हैं। हाँ अरीबा, सवेरा हो गया है। सुल्ताना के होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट उभर आई। अरीबा ने हैरत से कमरे में रोशनी और खिड़की के बाहर अंधेरा देखकर
کچھ کہنا چاہا تو وہ جھٹ سے بولی، سویرا دنیا میں نہیں بلکہ تمہاری اندھیری دنیا میں ہو گیا ہے۔ مبارک ہو بہن۔ سلطانہ نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اریبہ حسرت ناک لہجے میں بولی، میرا سویرا تو عاطف ہے، وہ تو بچھڑا ہوا ہے اور کہاں مل سکتا ہے؟ اس دنیا میں کیا کوئی چیز ممکن نہیں ہے پگلی؟ سلطانہ نے اس کے بالوں کو انگلیوں سے سہلاتی ہوئی مسکرائیں۔ عاطف آئے ہیں۔ سلطانہ تو سمجھی تھی کہ اریبہ خبر سن کر بھونکچی ہو جائے گی، اسے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا، فرتے خوشی سے اچھل پڑے گی، دیوانی ہو جائے گی، اس کمرے کی طرف تیر کے مانند سنسناتی ہوئے جائے گی جہاں عاطف بیٹھا ہوا تھا۔ مگر اس کی بات کا اس پر الٹا اثر ہوا تھا۔ وہ یہ بات سن کر بڑے زور سے ہنسی اور پھر سنجیدہ ہو کر بولی، آپا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رات کا وقت ہے۔ اس نے توقف کر کے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، رات کے 2 بج رہے ہیں، یقیناً آپ نے خواب دیکھا ہے۔ ارے بے وقوف، سچ کہہ رہی ہوں اریبہ، واقعی عاطف آئے ہیں، مہمان والے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سلطانہ سنجیدہ ہو گئی۔ عاطف اندر سے اتنا رحم دل اور غیرت مند شخص نہیں ہے جتنا نظر آتا تھا۔ آج کا واقعہ ایسا نہیں جو اس جیسے شخص کی آنکھیں کھول دے۔ وہ یقیناً اپنی غرض سے کشاں کشاں کھچا چلا آیا ہوگا۔ یہاں تک اتنی رات گئے آنے میں کوئی بات ہوگی۔ اس کی تہ میں کچھ نہ کچھ ہوگا، ورنہ کون سا مرد اس دنیا میں ایسا ہے جو ٹھکرائی ہوئی عورت کو گلے کا ہار بنا لے؟ تم عجیب چیز ہو اریبہ، سلطانہ ناگواری سے بولی۔ ایک شخص شرمسار اور نادم ہو رہا ہے، خجل ہو رہا ہے، اور تم اس کی نیت پر شک کر رہی ہو، اس لیے آپا کہ ثنا جیسی لڑکی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ وہ تو ثنا کے حسن کا مارا ہوا ہے۔ ثنا نے اسے بہت اچھا سبق دیا ہے، ایک ایسا سبق جو وہ ساری زندگی بھول نہیں سکے گا۔ نہ صرف اسے لاکھوں کی چوٹ دے گئی بلکہ خود بھی غائب ہو گئی۔ اس نے جو کچھ کیا بہت اچھا کیا۔ میری بات مانو تو تم جا کر عاطف سے بات کرو۔ اگر وہ اپنی کسی غرض سے آیا ہے تو جلدی ہی تم پر آشکار ہو جائے گا۔ پاپا نے غسل خانے میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، تولیے سے منہ پونچھا اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو تصور میں ثنا کا چہرہ حسین ابھر آیا، اور ثنا سے اپنے چہرے کا موازنہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ باہر آ گئی۔ جب کمرے سے نکل رہی تھی تب سلطانہ بولی، جاؤ بہن جاؤ، میری دعا ہے کہ خدا تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ عاطف اریبہ کے انتظار میں بڑا بے چین اور بےتاب ہو کر ٹہل رہا تھا۔ وہ شکار کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھا۔ اریبہ کا سراپا بھرا تھا۔ 1 صدی کے بعد جیسے دروازہ کھلا، اریبہ کا سراپا ابھرا۔ اریبہ دہلیز پار کر کے ٹھٹک کر رک گئی اور عاطف کی طرف دیکھتے لگی۔ اریبہ، عاطف نے اپنے بازوؤں کو فضا میں پھیلا کے جذباتی لہجے میں کہا اور اس کی سمت بڑھا۔ اریبہ کو تو جیسے اپنے کانوں میں صدیوں بعد رس گھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے غور سے عاطف کی طرف دیکھا۔ عاطف کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے چراغ جلتے پا کر اس کی روشنی میں بھیگنے کے لیے دیوانہ وار اس کی طرف بڑھی اور عاطف کے قریب پہنچ کر اس کے بازوؤں کے حصار میں بے اختیار سما گئی۔ وہ اس کے چوڑے چکلے سینے پر اپنا سر رکھ کر ایک دم سے سسک پڑی۔ اس کی آنکھوں سے بہتا ہوا آنسوؤں کا دریا عاطف کے سینے کو بھگوتا رہا۔ ادھر عاطف اسے اپنے سینے میں محصور کرتا گیا۔ ایسا کرنا اس کے لیے ضروری تھا، ورنہ اریبہ کو اس کی محبت کے اس عمل پر شک ہو جاتا۔ جب جذباتی حالت اور کیفیت کسی قدر اعتدال پر آئی تو عاطف نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اوپر اٹھائی اور اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں جھانکا۔ چند لمحے تک
वो मोहब्बत पाश नजरों से अरीबा की मुंजमद आंखों में झांकता रहा। फिर बड़े जज्बाती और गमगीन लहजे में ठहर ठहर कर बोला, मेरी जान, मेरी जिंदगी, अरीबा, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें बड़े दुख दिए हैं, बड़े कारी जख्म लगाए हैं। इन जख्मों पर मरहम रखने की बजाय नमक छिड़कता रहा हूँ। अरीबा ने तड़प कर इसके लबों पर हाथ रख दिया। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं आतिफ, ऐसा ना बोले। चंद लम्हे बाद इसने अरीबा के चेहरे पर अपनी नजरें मरकूज कर दी। अरीबा की आंखें बंद थीं और होंठ गुलाब की पंखड़ियों की तरह थरथरा रहे थे। वो रंधी हुई आवाज में बोला, अरीबा, आज के वाक़ये ने मेरी आंखें खोल दी। मालूम नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं शराब के पीछे भागता रहा था। तुम मुझे सजा दो, इतनी सजा दो कि सारी जिंदगी अपने किए पर नादिम रहूं और तड़पता रहूं। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। अरीबा ने अपनी आंखें खोलकर आतिफ को देखा और लरसती हुई आवाज में बोली, मेरे सरताज, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मेरे मजाजी खुदा हो। ये माफी किस लिए? बस तुम मेरी नजरों के सामने रहो, मुझे छोड़कर अब ना जाओ। अब मुझ में इतनी शक्कत नहीं रही कि तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त कर सकूं। मैं तुम्हें अब एक लम्हे के लिए भी जुदा नहीं करूंगा खुद से। तुम मेरी हो अरीबा, सिर्फ मेरी। आतिफ जज्बाती हो रहा था। तो फिर तुम अब यहाँ से नहीं जाओ, यही रुक जाओ, इसी घर को अपना घर समझो। मैं इस फ्लैट में नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हें इज्जत और एहतराम से इस घर में ले जाना चाहता हूँ जहाँ आज तुम्हारी बड़ी तजलील हुई। मैं ये चाहता हूँ जिस घर से तुम्हें ठोकर लगाई है वो घर तुम्हें अपनी इज्जत और आन का तोहफा समझकर सीने से लगाए, मगर तुम्हें इसके लिए इंतज़ार करना होगा। आतिफ अरीबा को लेकर पलंग पर बैठ गया। कैसा इंतज़ार आतिफ? अरीबा की आंखों में हैरत का गहरा सकूत छा गया। मैंने जो तुम्हें दोबारा पाने के लिए सदियों का इंतज़ार किया वो ना काफ़ी था। मेरी बात गौर से सुनो और मुझे समझने की कोशिश करो। आतिफ ने इसका सर अपने शाने पर रख कर सहलाते हुए कहा, अब तक जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। एक नई और खुशगवार जिंदगी के आगाज के लिए अपना रास्ता साफ रखना चाहता हूँ। सना और इसके बाप ने मेरी कमजोरी से पूरा पूरा फायदा उठाकर 4.5 लाख रुपए की रकम हथिया ली, जिसमें 3 लाख रुपए का एक नया मकान, 1 लाख फिक्स डिपॉजिट और हक महर की 50,000 की रकम है। मुझे सना की तलाश है, इसके खबीस बाप की तलाश है, ताकि इन दोनों को कमीनगी का मज़ा चखाऊं। तुम जैसा ज़हीन और होशियार आदमी इनकी चालाकियों के फरेब में कैसे आ गया? कल तक तो तुमसे सारी दुनिया फरेब खाती रहती थी। अरीबा हंस कर बोली, तुम तो मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो अरीबा। वो शिकायती लहजे में बोला, जबकि मैं जल रहा हूँ और मेरा वजूद जख्मी है। अरीबा ने इसके गले में अपनी मरमरी बाहें हमाइल करके इसे मखमूर नजरों से देखा। आतिफ, तुम आज तक मुझे समझ नहीं सके हो। अगर तुम्हें समझता नहीं और तुम्हारी कदर कीमत का अंदाजा नहीं होता तो मैं तुम्हारे दर पर कदम नहीं रखता। इसके बाजुओं ने अरीबा को फिर महसूर कर लिया। तुम मुझे बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? जख्म कहाँ है? मैं तुम्हारे दर्द और जख्मों की दवा बन जाऊंगी। वो चहकी। आतिफ ने बहकते हुए कहा, मुझे तुम सना और उसके बाप का पता बता दो। मैं आज ही शाम का सर कुचल कर रख दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सना का पता लगा कर इसे अपने घर ले जाना चाहते हो? अरीबा ने चौंक कर मशकूक होके पूछा। आतिफ एक लम्हे के लिए इस तरह से घबरा गया कि जैसे चोर चोरी करते हुए पकड़ लिया गया हो। दूसरे ही लम्हे इसने संभल के जवाब दिया, क्या वो अब इस काबिल रही है कि इस घर में कदम रख सके? तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का क्या भरोसा? वो बुझे बुझे लहजे में बोली, आखिर वो एक चांद का टुकड़ा है, इसकी हर गलती काबिले माफ़ी होगी। तुम गलत समझ रही हो अरीबा। आतिफ ने इसका गाल थपथपाया। इज्जत बड़ी चीज़ है,
सना और उसके बाप ने जो कुछ किया, इसने हमारी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं रखी है। हमें दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा है। क्या अब हम इस ऐसी जलील लड़की को गवारा कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। बस मैं चाहता हूं कि इनसे जायदाद और बैंक के कागजात ले लूं और सना को तलाक दे दूं। 50,000 हक महर के जो ले गई, बला से गए, सदका किया समझो। क्या तुम इससे मकान और बैंक की रकम वसूल कर सकोगे? अरीबा ने हैरत से पूछा। जबकि वो दोनों चीजें सना के नाम पर हैं, फिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो मकान तुमने खरीद के दिया और बैंक में लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट भी रखवाए? पहले तो मैं ये चाहूंगा कि सीधी उंगली से घी निकल आए। अगर वो शराफत की जुबान नहीं समझे तो फिर मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। आतिफ सफाकी से बोला। अरीबा प्लीज, प्लीज मुझे उनके घर का एड्रेस दो। फिर उसने बड़ी चाहत से बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए उसको अपने जाल में घेरने लगा। हाँ, तो तुमने सना के घर का पता नहीं बताया। वो तो अपने घर पर होंगे। इनका घर तो तुम्हारा देखा हुआ होगा ना? अरीबा ने चाय को हलक से नीचे उतार के जवाब दिया। मैंने सुना था कि वो नई कराची में रहते हैं। हम में से किसी ने इनका पुराना मकान तक नहीं देखा है। क्या इस मकान पर वो लोग मौजूद नहीं हैं? वो लोग इस घर पर नहीं हैं। इन चालबाजों ने आज सुबह ही अपना मकान खाली कर दिया और किसी को ये तक नहीं बताया कि वो किस मोहल्ले में जाकर आबाद हो रहे हैं। मैं तो ये समझा था कि तुम शायद इनके नए मकान का पता जानती हो। मुझे तो मगरिब के वक्त इत्तला मिली थी कि तुम्हारी शादी सना नामी किसी लड़की से हो रही है। अरीबा इसकी बात काट के कहने लगी। मैं और सुल्ताना शादी हाल पहुंची थी कि किसी तरह ये शादी रुकवाएं। शादी हाल के बाहर रुककर हमने एक औरत के जरिए आरिफ खान साहब को बुलाया। सुल्ताना आपा ने इन्हें मेरी कहानी सुनाई तो वो बोले, तुमने चंद लम्हों की देर कर दी। निकाह अभी अभी तो हुआ है। तुम चंद लम्हे पहले आ जाती तो मैं बारात लौटा देता। फिर वो हमें अकबी रास्ते से अंदर ले गए। सना ड्रेसिंग रूम में अपनी सहेलियों की मौजूदगी में बैठी हुई थी। वही मंसूबा बनाया गया और इसकी सहेलियों के ताउन से ही ये मंसूबा कामयाब हुआ। मैं तैयार न थी, मगर सर सना और इसकी सहेली के शदीद इसरार पर राजी होना पड़ा। ये है सना से मुलाकात और तारुफ की कहानी। इस कहानी को सुनकर आतिफ की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। इसने अरीबा की बातों के दौरान अंदाज़ा कर लिया था कि वो बड़ी सच्चाई से एक एक बात बता रही थी। वो इस बात से वाकिफ था कि अरीबा एक सच्ची और खरी औरत है। इसको लगी लपटी की आदत नहीं, वो झूठ नहीं बोलती। इस कमरे में घुटन और अरीबा से अब इसे वहशत सी महसूस होने लगी। इसे ऐसा महसूस होने लगा कि कैद खाना में बंद कर दिया गया हो। वो जल्दी से अपनी चाय खत्म करके उठा और रूखेपन से बोला, अच्छा अरीबा, मैं जा रहा हूँ। अब तुमसे जल्द ही मुलाकात होगी। इतनी जल्दी? अरीबा हैरत से दम बखुद रह गई। अब कहाँ जाओगे आतिफ? रुक जाओ, तुम मुझे कितनी सदियों बाद मिले हो। मैंने तो तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं। मुझे इन दो सांपों की तलाश है अरीबा, जिसने मेरे घर इसकी इज्जत और खुशियों को डस लिया है। मैं इनकी तलाश करके इनका सर कुचलना चाहता हूँ। वो जाएंगी कहाँ? कभी न कभी, कहीं न कहीं तो मिल ही जाएंगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि इन्हें तलाश करके तुम्हारे कदमों में ला डालूंगी। वो लोग शायद इस शहर और इस मुल्क से फरार होना चाहते हों। मैं इनके इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगा। तो गोया तुम सना और उसके बाप का पता मालूम करने हमारे पास आए थे आतिफ? अरीबा ने जख्म खुर्दा लहजे में कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात नहीं है अरीबा। इसने अरीबा के करीब पहुंचकर इसे शानों से थाम लिया। तुम बिला वजह मुझ पर शक कर रही हो। तुम फिर क्यों नहीं रुक जाते? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे कदमों में बैठकर सदियों से सीने में जलती हुई बेकरारी की आग को बुझा लूं। रुक जाओ ना।
अरीबा ने इसके सीने पर सर रख दिया तो आतिफ ने इसे रूखेपन और बेरहमी के अंदाज में हटा कर कहा, अरीबा, तुम बाज़ औक़ात बच्चों जैसी हरकतें करने लगती हो। मौका महल को ज़रा बराबर भी नहीं समझती हो। तुम्हें कोई एहसास और अंदाज़ा नहीं कि मुझ पर क्या बीत रही है, मुझ पर क़यामत टूट पड़ी है। मेरे ज़ख्म पर मरहम रखने की बजाय तुम अपने ज़ख्म दिखा रहे हो। वो ज़ख्म नहीं हैं, वो तो तुम्हारे अपने गुनाह हैं, तुम्हारे किरदार के धब्बे हैं। अगर वो ज़ख्म होते तो मैं मरहम बन जाती। अरीबा के सीने में सांसें उलझ गई थीं। चेहरे के दमक की जगह गुस्से की लाली ने ले ली। वो गहरा सांस लेकर बोली, अब मैं समझी कि तुम मेरे पास किस लिए आए थे। मुझे बहला फुसला कर सना का पता मालूम करने के लिए। वो तवक्कुफ करके तेज और तुंद लहजे में बोली, आतिफ, जिस तरह आए थे इसी तरह चले जाओ। मैं समझ लूंगी कि हवा का एक खुशगवार झोंका आया था जो मुझे छू के लम्हे के लिए फरत बख्श कर निकल गया। तुम्हारी इन अहमकाना बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैं जा रहा हूँ। मेरे लिए एक एक लम्हा बेहद कीमती है। अब तुम बैठकर तस्वे बहाती रहो। आतिफ अपनी बात खत्म करके रुका नहीं। इसने अरीबा के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और तेजी के साथ कमरे से निकला तो अरीबा ने भी इसे नहीं रोका और ना ही पुकारा। वो तो बेहसो हरकत खड़ी इसे जाता देख रही थी। सुल्ताना जो किसी काम से आई थी, इसने दरवाजे के पास रुक कर इन दोनों की आखिरी गुफ्तगू सुन ली थी। वो आतिफ को रोक कर समझाना चाहती थी। वो आतिफ के पीछे लपकी। आतिफ, आतिफ, इसने बड़ी लजाजत से पुकारा और पीछे दौड़ी। आतिफ ने बैरूनी दरवाजे के पास रुक कर इसे छिड़का, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? क्या जरा सी बात पर अरीबा से नाराज होकर जा रहे हो? सुल्ताना बाजी ने बड़ी नरमी से पूछा, आप इसे जरा सी बात कहती है? वो तो बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही, मुझ पर शक व शुबा कर रही है। मैं अपनी किसी गर्ज से आया हूँ और इसे ज़रा सा भी एहसास नहीं कि मुझ पर इतनी अफ्ताद आन पड़ी। इसे तो अपनी पड़ी है। वो चाहती है कि मैं तबाह बर्बाद होकर रह जाऊं। आतिफ तड़क कर बोला, नहीं आतिफ। वो खुशामदा लहजे में बोली, वो कैसे चाहेगी कि तुम परेशान और बर्बाद हो जाओ? तुम गलत समझ रहे हो। मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझता हूँ कि आप लोग क्या हैं। मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाएं। आप लोगों ने सना और उसके बाप के साथ मिलकर मेरे साथ जो घिनौना खेल खेला है, मैं इसके लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। मैं इसका भयानक इंतकाम लेकर रहूँगा। फिर दरवाज़ा खोल कर निकला, स्कूटर स्टार्ट किया और चलता बना। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अंदर कैसे जाए। ना आप को अरीबा का मुजरम समझ रही थी। वो चंद लम्हे किसी मूर्ति की तरह खड़ी थी। इसे अपने दिल के धड़कने की सदा साफ सुनाई दे रही थी। इस पर सकता तारी था। इसमें अंदर जाने और सामना करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अरीबा का उतरा हुआ चेहरा देखकर रोज ही इसके दिल पर चोट लगती थी। एक फांस सी गड़ी हुई थी जो निकलने का नाम नहीं ले रही थी। वो कमरे में गई और अरीबा के करीब पहुंचकर रुकी तो अरीबा ने इसकी मौजूदगी महसूस करके आंखें खोल दी। वो दोनों गमनाक और मंजमद आंखों से एक दूसरे की आंखों में चंद लम्हों तक झांकती रही। फिर अरीबा इसके करीब होकर कंधे पर सर रखकर रोने लगी। सुल्ताना चंद लम्हे खामोश रही। वो चाहती थी कि आज अरीबा इतना रोए कि इसकी दिल की भड़ास निकल जाए। आपा, मैंने आपसे क्या कहा था? वो सना की तलाश में आया था। मालूम नहीं क्यों मैं फरेब खा गई थी। मैंने इसे समझने में गलती की थी। मैंने सोचा था शायद इसे वाकई नदामत हो। मैं ये समझी थी कि आज के वाक़ये ने इसकी आंखें खोल दी होंगी। अरीबा बेजान हंसी हंसकर बोली, इसकी आंखें तो शायद मौत भी ना खोले। वो बहुत ही खुदगर्ज आदमी है, बल्कि भेड़िया है। सना ने इसे बहुत अच्छा सबक दिया है। मैं दुआ करती रहूंगी कि सना पर इस जैसे जलील और कमीने शख्स का साया तक न पड़े। वो सारी जिंदगी सना के पीछे इस तरह भागता रहे जैसे कुत्ता अपनी दुम के पीछे घूमता है।
और तुम इसके मुंह में नहीं आती। सुल्ताना ने नफरत से बद्दुआ दी। अरीबा ने मुड़कर सुल्ताना के मुंह पर अपना कांपता हुआ हाथ रख दिया। खुदा के लिए आतिफ को जलील और कमीने से मुखातिब ना करें। अजीब लड़की हो तुम, सुल्ताना चौंक कर हैरत से बोली। आतिफ अरीबा के हाथ से निकलकर सीधा कैंट स्टेशन और फिर सिटी स्टेशन पहुंचा। एक एक प्लेटफॉर्म और वेटिंग रूम झांक लिया। वहां सन्नाटा था, वीरानी बरस रही थी। अलल सुबह वाली गाड़ी में जाने वाले मुसाफिर प्लेटफॉर्म, स्टेशन के अहाते, इमारत, इंतजार गाहों में सो रहे थे। इन सोते लोगों को भी इसने देखा। फिर इसने हैदराबाद जाने वाली बस के रास्ते पर जाकर दो तीन बसों को भी खूब चेक किया। इन दोनों का कहीं नामो निशान तक नहीं था। फिर थक हार कर वो अपना स्कूटर पार्क करके पार्क के अंदर दाखिल हो गया। फिर वो बेंच पर बैठने की बजाय घास पर बैठ गया। वो छोटे बच्चे की मानिंद फूट फूट कर रोने लगा, जैसे बच्चे रोते हैं। जिंदगी में पहली बार वो रो रहा था। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रोते रोते इसकी हिचकियां बंध गईं। कुछ देर बाद इसके आंसू थमे तो किसी कदर दिल को सुकून हुआ और बोझ कुछ कम महसूस हुआ।